Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to solve probability exercise with you from NCERT Mathematics. Yesterday we had done till question number 17. Now let's move ahead with 18th. So what's been asked in 18th? In class 11 of a school, 40% of students study mathematics and 30% study biology, 10% of class study both mathematics and biology. If a student is selected random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. ठीक है, तो जो दिया है पहले वो लिखते हैं। मैथ्स के लिए क्या दिया हुआ है? मैथ्स के लिए दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी that student study मैथ्स। क्या होगी इसकी? ये दिया हुआ है अपने को 40%। ठीक है, फिर अपने को दिया हुआ है 40% मतलब कितना हो गया? 40% हो गया 0.4। ठीक है, फिर अपने को दिया हुआ बायोलॉजी की। फॉर बायोलॉजी इज गिवन टू बी 30%, so this is equal to 0.3. Then students who study both maths and biology are 10%, तो both कितना है? 10% मतलब 0.1। एंड देन अपने से बोला है कि फाइंड द स्टूडेंट दैट विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी। तो सेम क्वेश्चन है, we have to apply the same formula P of A union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. Okay, so it would be like this. So just put the values and you will get the answer. Um, we have to calculate this, let bx or let it be equal to PA, which is for maths that is 0.4, plus PB, which is for biology, it is 0.3, and minus for both, it is 0.1. So the answer would be 0.6. Okay, so these are the percentage of more than 60%. So 60% students are those who study either maths or biology. Okay, then it was an easy question, I think so. Then let's move to next question, question number 19. In an entrance test that is graded on the basis of in an entrance test that is graded on the basis of two examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8, second is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. Then what is the probability of passing both? ओके, तो अपने को बोला है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी दी है और अपने को बोला है कि एटलीस्ट एक में उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो पहले जो दिया है वही लिखते हैं। सबसे पहले पी ए अपने को कितना दिया हुआ है? पी ए अपने को दिया हुआ है मतलब एक फर्स्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.8। देन पी बी कितना दिया हुआ है? पी बी इज गिवन टू अस एज 0.7। देन फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नथिंग बट पी ए यूनियन बी। मतलब मैं समझाता हूँ इसका। पी ए यूनियन बी, let me draw the union first. So we have given P A union B to be equal to 0.95. So how it is P A union B? Because it is saying the probability of passing at least one of them. At least one of them से क्या पता चलता है? At least मतलब हो सकता है उसने दोनों भी कर लिए हो सकता है सिर्फ एक ही किया हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ए यूनियन बी में आएगा। ए यूनियन बी में ए वाले भी आते हैं, बी वाले भी आते हैं, मतलब ए और बी वाले दोनों आते हैं, मतलब जो ए में भी और बी में भी हो। उसने बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम, ए यूनियन बी में दोनों ही आ जाएंगे। ऑब्वियस बात है, एटलीस्ट मतलब वो दोनों दोनों के लिए हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे लिखा होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ
एटलीस्ट वन ऑफ समथिंग, मतलब ऐसा कभी दिया हुआ क्वेश्चन में दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग इज एटलीस्ट दिस मच, तो वो एटलीस्ट वाले जब भी बात हो रही है तो वो यूनियन की बात कर रहे होता है। तो इस केस में अपने को बस ए यूनियन भी दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, अपने को ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो let us write down this way, a union b and a intersection b। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, we have to just put the values and we will get our answer। ठीक है, so let's write down, it is given to us as 0.95 is equal to pa is 0.8 plus 0.7 minus, let it be x, so x is equal to 0.8 plus 0.7, which is 0.8 actually, minus 0.95. So this will come out to be 0.55. Okay. So this is the answer for probability of passing both examinations. This is nothing but this is probability, sorry, of passing both exams. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 19 भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। So in question number 20 it is given thus that the probability that the student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5। ओके, तो अपने को क्या दिया हुआ है, सुबह लिखते हैं पी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन दिया हुआ है बेसिकली, क्योंकि लिखा है कि दोनों में पास कर रहा है, मतलब फिर दोनों होने चाहिए। जब एटलीस्ट दिया होगा तो अपन लोग लेंगे यूनियन, और जब लिखा होगा कि बोथ तो अपन लोग लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि अपने को दोनों चीज चाहिए। मतलब वो वाला केस है जिसमें दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब इंग्लिश में भी पास करे और हिंदी में भी पास करे। ठीक है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक PE intersection H, that is given to us as 0.5. Then it is saying probability of passing neither of them, neither of them मतलब एक कोई पास नहीं कर रहा, तो वापस वही चीज दी हुई है, बस इस बार अपने को दोनों का बार दिया हुआ है, मतलब E बार इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन H बार। क्यों? क्योंकि बार इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अपने को बोला है कि वो दोनों में पास नहीं करा, दोनों में पास नहीं करा मतलब ई में भी फेल हो रहा है, एच में भी फेल हो रहा है, दोनों का बार हो गया और दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि अपने को बोला है कि दोनों में फेल हुआ है वो। तो ये कितना दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश भी दिया हुआ है, तो अपने को दिया हुआ है पीई, कितना दिया हुआ है ये, पीई अपने को दिया हुआ है 0.75। ठीक है, अभी मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया डी मॉर्गन वाला कि मैं ये पीई बार इंटरसेक्शन एच बार को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 - पी ई यूनियन एच, ये मैंने आपको कल बताया था, ये फॉर्मूला होता है 1 - पी ई यूनियन एच। मैंने आपको बताया था ना कि पी ई बार इंटरसेक्शन एच बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी मॉर्गन लगा के, तो ये अपने को दिया हुआ है 0.1। तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा पी ई इंटरसेक्शन यू एच, तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था, तो हो जाएगा 0.1, एक्चुअली 1 - 0.1, 1 - 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ, तो यहाँ से अपने को पीई यूनियन एच मिल गया, पीई इंटरसेक्शन एच दिया हुआ था, अपने पी निकाल लिया, अपने को बस अब एक चीज लगा लिया फॉर्मूला, and we can easily get the value of pH। Okay, so let me write it down, PE union H, तो यूनियन में और लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, यूनियन सेम एज और, PE और H is equal to PE plus PH
माइनस पी ई एंड एच. ओके. So from here, this is 0.9 is equal to 0.75 plus P of H minus PE and H is given to us as zero point 0.5. Okay. So from here, I can say P of H is equal to zero point 0.9 minus 0.75 plus zero point 0.5. So this will come to be something approx 0.65. So this is my final answer. Okay. So this is question number 20. Now let's move to last question number 21. Then we will move to next exercise. So what is given in question number 21? It is given in a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. Then if one of these students selected random, find the probability that the student opted for NCC or NSS. Okay. तो जो दिया है वो लिखते हैं. टोटल कितने हैं? टोटल हैं 60. ठीक है. फिर एनसीसी के कितने हैं? 30. एनसीसी के हैं 30. एनएसएस के हैं 32. एनएसएस के लिए है 32. देन दोनों के लिए, बोथ के लिए कितने हैं? बोथ के लिए है 24. ठीक है. फिर अपने से पहले पार्ट में पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस. मतलब अपने से बोला है कि अपने को बताना है एनसीसी और एनएसएस बोला है ना, तो अपने को बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी बताना है. तो इट इज, इसके अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, पी ए और बी, सॉरी, पी ए और बी पूछा है ना मुझसे. मुझसे बेसिकली ये पूछा है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ए मतलब स्टूडेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एनसीसी, दैट विल बी 30/60, मतलब 0.5, प्लस पीबी, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 32/60. 32/60 कितना हो जाएगा? 32/60, चलो एक बार मैं क्या बोलता हूँ उसको वैसे लिखता हूँ. मतलब 30/60 प्लस 32/60 माइनस फॉर बोथ, मतलब वही एंड वाला, तो वो हो जाएगा 24/60. ठीक है. तो यहाँ से अपने को आंसर मिल जाएगा क्या? 30 प्लस 32 62, 62 माइनस 24 इज 52, 42, 38, 38/60, 38/60, दैट इज इक्वल टू 19/30. तो ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है. फिर अपने से क्या बोला है? फिर अपने से बोला है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस. दोनों ही ऑप्ट नहीं किया, मतलब अपने को चाहिए पी ए नॉट, मतलब ए भी ऑप्ट नहीं किया है एंड बी नॉट, बी भी ऑप्ट नहीं किया है. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया था. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए और बी, वही सेम डी मॉर्गन फॉर्मूला. तो ये कितना हो जाएगा? ये मैंने भी निकाला. ये हो जाएगा 1 - 19/30, दैट इज इक्वल टू 11/30. ठीक है. तो सेकंड पार्ट हो जाएगा, सिंपल था. द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस. ये तो सिंपल है. ये अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है पी ऑफ ए माइनस बी, मतलब एनसीसी के लिए ऑप्ट किया है लेकिन एनएसएस के लिए ऑप्ट नहीं किया. तो ये तो सिंपल है. पी ऑफ ए माइनस बी अपने से पूछा है. तो इसको कैसे करेंगे? um, या फिर पी बी माइनस है, मतलब आप जिसको भी, मतलब अगर मैं ए बी वैसे ले रहा हूँ, ए है मेरा एनएसएस वाला और बी है एनसीसी वाला. या अगर आप उल्टा लेना तो उल्टा भी कर सकते हो. इसको बी मान रहे हो तो इसको बी मान लो और इसको ए मान लो. तो ये कैसे निकालूंगा मैं?
तो पी बी माइनस एक क्या हो जाएगा, पी बी माइनस हो जाएगा पी बी माइनस जो दोनों में है, क्योंकि मेरे को सिर्फ पी बी वाले चाहिए। मेरे को वो नहीं चाहिए जो दोनों में है, मेरे को सिर्फ चाहिए जो बी में है लेकिन वो ए में नहीं है। तो जो पी की बी की प्रोबेबिलिटी है माइनस जो दोनों की प्रोबेबिलिटी है ए एंड बी। मतलब इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें मैं वॉल हटा रहा हूँ जो दोनों में है, मैं बी से वॉल हटा रहा हूँ जो दोनों में है, जिससे कि मुझे सिर्फ वही वाले मिले जो सिर्फ बी में बचे। तो इट वुड बी पी बी माइनस पी ए एंड बी। ओके, सो पी बी माइनस पी ए एंड बी इज 32/60 minus 24/60. So this will come how much? 32 minus 24 is 8. 8/60 is nothing but 2/15. So this is my answer to the final part of the problem, that the students opted for NSS but not NCC. तो आई होप ये एक्सरसाइज वैसे तो इजी थी, बस थोड़ा बहुत आपको ए इंटरसेक्शन भी, ए यूनियन भी और वो डी मॉर्गन वाले फॉर्मूले की थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है देन ये वाली एक्सरसाइज कैन बी इजी। और जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन था पी बी माइनस है, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये कैसे निकलेगा। तो आपने को बी में से वाले हटाने हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो पी बी माइनस जो दोनों में आ रहे हैं मतलब पी ए एंड बी, तो वहां से मैंने ये निकाल लिया। तो आई होप ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वैसे ही इजी थी, एज सच टफ नहीं थी, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था। अपन लोग चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस वाली पे। Miscellaneous exercise. This is containing 10 questions. Okay. So let's move to next exercise. A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. Okay. Then 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue and at least one will be green? Okay. तो इसमें से सबसे पहले अपने को टोटल केस बनाने पड़ेंगे। टोटल केस कितने हो जाएंगे, एन एस कितना हो जाएगा, मतलब सैंपल स्पेस में बोल रहा हूँ, सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी, सब लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर अपने पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 30 और 20, 50 और 10, 60, अपने को 60 में से 5 मार्बल्स चुनने हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको अपन लोग चुन सकते हैं 60C5 तरीके से। इसमें क्या होगा, इसमें अपने को वो ऑर्डर कंसिडर नहीं होगा, मतलब ये तो उसको चुनने के लिए अपन लोग 60C5 तरीके से चुन सकते हैं। अगर अपने को 5 बॉल्स चुननी है 60 बॉल्स में से, अपने को फिर क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। तो इट इज सिंपल, पी ब्लू क्या होगा, नेक्स्ट थिंग इज इक्वल टू फॉर ब्लू अपॉन फॉर ऑल सैंपल स्पेस। सो इट वुड बी, अपने को ऑल विल बी ब्लू चाहिए ना, तो अपने को टोटल ब्लू बॉल्स 20, तो अपने को 20 में से चुननी है 5, तो 20C5 डिवाइड बाई 60C5, 60C5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, सेम विथ 60C5। सो एक अपने को शायद ऐसे, अपन ऐसे शायद इसको इसी में छोड़ सकते हैं। बाकी अगर अपने को इसको सॉल्व भी करना हो तो अपन लोग इसको ऐसे करेंगे कि 20C5 इज नथिंग बट 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल, एंड 60C5 इज 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 60 - 5 मतलब 55 फैक्टोरियल। इस टाइप से अपन लोग सी को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने बेसिकली किया क्या है, इस क्वेश्चन में अपन को वो देखना ज्यादा जरूरी है। अपने को चाहिए था कि ऑल विल बी ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरे को 5 बॉल्स निकालनी थी। तो ब्लू बॉल्स की अगर अपने को सिर्फ चाहिए तो अपनी जो फेवरेबल केस क्या होंगे कि मैं सिर्फ इन ब्लू बॉल्स में से 5 ब्लू बॉल्स निकालूं, तो वो मैं निकाल सकता हूँ 25 तरीके से। अपॉन टोटल केसेस, टोटल केसेस क्या होंगे, 30 + 20 + 10 मतलब 60। 60 में से 5 शून्य है तो 60C5। सो अपनी आंसर हो जाएगा 20C5 डिवाइड बाय 60C5। ठीक है, फिर अपने को बोला है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन। एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन का कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, बताता हूँ आपको। इट इज पी एटलीस्ट वन ग्रीन। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग करेंगे ऐसे, वन माइनस पी नन ग्रीन, मतलब अपन ऐसे कर लेंगे कि अपने को चाहिए कि एटलीस्ट ग्रीन हो, तो अपन अगर वन में से वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, इसमें एक भी ग्रीन नहीं है, तो अपने को एटलीस्ट वन ग्रीन वाली मिल जाएगी।
समझो इसको। एटलीस्ट का मतलब है कि आप या तो एक हो सकती है या एक से कितनी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए। तो अगर मैं वन में से उसको माइनस कर दूंगा जिसमें एक भी नहीं है, तो अपने पास अपने को सारी केसेस मिल जाएंगे जिसमें ग्रीन बॉल्स आ रही है। तो वन माइनस पी नन ऑफ द ग्रीन, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन माइनस नन ऑफ द ग्रीन, मतलब यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ। नन ऑफ द ग्रीन कैसे निकालेंगे? मतलब मेरे को ग्रीन बॉल्स को चुननी है, तो ग्रीन बॉल्स को हटा दो, कितनी बची? 20 और 10 30। तो 30 में से 5 चुननी है। 30 C5 डिवाइड बाई टोटल, मतलब 60 C5। ठीक है। तो वन माइनस 30 C5 अपॉन 60 C5, ये मेरा आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और चलिए सिंपल था। बस मैंने एक काम किया है कि मैंने नन ऑफ द ग्रीन को वन से माइनस किया, जिससे कि मेरे को सारे एटलीस्ट वाले, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रीन वाली केस मिल जाएगा। ठीक है। तो टफ नहीं था, बस अपने को थोड़ा सोचना था इसमें। बाकी तो आई होप इजी था ये। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है इसमें? इसमें बोला है फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगी? अपने को 52 में से चार पत्ते चुनने, कैसे चुन सकते हैं? अगेन वही 52C4 तरीके से। ठीक है। फिर मुझे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड वन स्पेड। तो टोटल डायमंड कितने होते हैं? मैंने आपको उस दिन बताया था वैसे तो। टोटल डायमंड 13 होते हैं। टोटल डायमंड्स कितने होते हैं? 13। ठीक है। और एंड वन स्पेड। और टोटल स्पेड्स कितने होते हैं? चार। टोटल स्पेड्स कितने होते हैं? 4। ठीक है। तो यहाँ डायमंड्स हो गए, स्पेड हो गए। अब अपने को बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड वन स्पेड। तो 3 डायमंड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर डायमंड्स अपने को 13 में से 3 चुनने हैं, ये अपने फेवरेबल केस हो जाएंगे 13C3। और एस निकालने के लिए क्या होगी? एस निकालने के लिए हो जाएगा एस। अच्छा, एस बोला है क्या? स्पेड बोला है क्या? तो फिर मैंने एस समझ गया। स्पेड भी 13 होते हैं। सिमिलरली वैसे स्पेड के लिए भी इतना हो जाएगा। स्पेड के लिए भी 13C1, क्योंकि अपने को स्पेड एक ही निकालना है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 13C3 फॉर डायमंड्स मल्टीप्लाइड बाई 13C1 फॉर स्पेड्स डिवाइड बाई टोटल, मतलब 52C4। ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे को दोनों चाहिए। मेरे को डायमंड भी चाहिए, स्पेड भी चाहिए। अगर मेरे को और बोला होता तो फिर मैं ऐड करता, लेकिन मेरे को बोला है 3 डायमंड्स एंड वन स्पेड, क्योंकि एंड बोला तो मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। अब इसको अपन लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला करके बताया था आपको। चलो मैं लिख देता हूँ। इट वुड बी 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल देता हूँ। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई अगेन 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, तो वन ही हुआ। 13 - 1 12 फैक्टोरियल। ठीक है। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई 52C4, मतलब 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 48 फैक्टोरियल। तो यस हो जाएगा। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई, पूरे पे लगा दे ऐसे, 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। तो दूसरा टर्म के साथ है पता है ना, 52 - 4 करके। तब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे खोल के, एंड वी कैन इजिली गेट अवर आंसर। ठीक है। तो इस टाइप से अपन लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बोला है अपने को? इसमें बोला है अ डाई एक मिनट आ गया। A die has two faces, each with number 1, 3 faces each with number 2, and one face with number 3. If the die is rolled once, determine P2, मतलब दो आने की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो देखो नॉर्मल डाइस में तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन ये थोड़ा बायस्ड डाइस है। इसमें 3 2 के हैं, एक 1 का है और एक 3 का है। ठीक है।
दो वन के, तीन दो के और एक थ्री का है। अपने को P2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सिंपल है, P2 बताना है ना। तो P2 क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा N2/Ns, मतलब टू आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल। दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो कितनी फेस है? तीन फेस है, तो दो आने की प्रोबेबिलिटी हो गई थ्री डिवाइड बाय टोटल सिक्स। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया हाफ। सिंपल, जैसे अपन लोग फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में करे थे वैसे अपन ने किया। फिर अपने को क्या बोला है? फिर अपने को बोला है P1 और थ्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये वापस वैसे ही निकलेगा अपना, कि अपना एक भी आ सकता है या फिर तीन भी आ सकता है। तो हाउ कैन डू दिस? हम P1 और थ्री, सबसे पहले तो लिखते हैं इसको हम लोग। P1 और थ्री मतलब P1 + P3 माइनस P इंटरसेक्शन 1 3। लेकिन P1 इंटरसेक्शन 3, लेकिन वन और थ्री कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन भी आ रहा हो थ्री भी आ रहा हो। मतलब जो अपन डैश पे रोल करेंगे तो ऊपर तो एक ही फेस आएगी ना, वन चाहे थ्री, दोनों तो आ ही नहीं सकती। तो P1 इंटरसेक्शन 3 तो जीरो ही है, तो उसको लिखने का तो मतलब नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? P1 कितना है? वन है, टू डिवाइड बाई टोटल सिक्स, प्लस P3 कितना है? थ्री है, वन डिवाइड बाई सिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6, दैट इज इक्वल टू हाफ। So, NS is 10,000 C1, NA is 9,990 C1. Now, for PA, how to calculate the probability of PA? We know that PA is nothing but NA/NS. Why? Because we want that probability when we are not winning the prize. So, prize is not when we choose one tickets from 9,990 tickets, because 10, only 10 tickets have prizes. So PA is nothing but 9,990 C1 divided by 10,000 C1. Okay. Now how to solve 10,000 C1? 10,000 C1 is 10,000 factorial divided by 9,999 factorial, which is equal to 10,000 multiply by 9,999 factorial divided by this. So 9,999 factorial will cancel out, and what we will get? We will get 10,000 as our answer. Okay. Similar way we can solve 9,990 C1, and then dividing this we can get PA. Okay. So this is for one ticket. For two tickets and 10 tickets, we can do in a similar fashion. For what we'll do for two tickets? For two tickets, we will choose 10,000 C2, and from 9,990, again we will choose two tickets. So it would be 9,990 C2 divided by 10,000 C2. Okay. Then for 10 tickets, we will choose 10,000 C10 and 9,990 C10, and then we will divide. Just we have to replace one with 2 and one with 10, and we can easily get B and C part. So I hope you understood this question. This is easy, I think so. So let's move to next part. Question number fifth. It is saying what? It is saying out of 100 students, two sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? Okay, that we both enter the same section. Okay, we can do this question. Total 100, ठीक है। फिर अपने को बोले कि 100 में से दो सेक्शन बना, एक 100C40 का और एक 100C60 का। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर द सेम सेक्शन। सो इसमें दो केस बन सकते हैं, क्या तो दोनों सेक्शन ए में चले जाए या दोनों सेक्शन बी में चले जाए। जो इसका ए पार्ट है उसमें दो केस बनेंगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर सेक्शन ए प्लस सेम थिंग। ठीक है, तो इन दिस वे विल डू दिस क्वेश्चन। सो मूविंग अहेड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इन द सेक्शन ए या फिर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इन द सेक्शन बी। सो लेट मी कॉल इट पी ए and let me call it PB. Okay. So what can we do? For both entering section A, I need मैं चाहता हूँ कि दोनों सेक्शन ए में आ जाए।
दोनों अगर सेक्शन ए में आ जाएंगे तो कितने बचेंगे? 98 बच्चे बचेंगे। 98 में से 98 में से मेरे को 38 बच्चे चाहिए सेक्शन ए के लिए, क्योंकि दो तो आ ही गए हैं। डिवाइड बाय 100 सी 40, मतलब पूरे 100 में से कोई 40 आए, ये तो मेरी सैंपल स्पेस हो गई। लेकिन वो दोनों आ गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 98 में से 38 ही आए। क्यों? क्योंकि दो को मैं ले आया हूँ, तो दिस इज माई पी ए। सिमिलरली आई कैन राइट पी बी हाउ? अगेन 98, दो आ गए हैं। सी 58, क्यों? क्योंकि दो आ गए हैं तो मेरे को 60 की जगह सिर्फ 58 बच्चे चाहिए। डिवाइड बाई 100 से 60। सो दिस इज द आंसर फॉर माई फर्स्ट पार्ट। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस, इसमें क्या करना है अपने को? अपन ने उन दो बच्चों को फिक्स कर दिया है कि वो दोनों आइदर ए में आ गए हैं या फिर आइदर बी में आ गए हैं। तो ए में अगर आ गए हैं तो मेरे को बच्चे हुए कितने चाहिए? 38 बच्चे और चाहिए, टोटल 40 चाहिए ए में। तो मैं ए में चुन रहा हूँ 98 बच्चों में से। क्यों? क्योंकि दो तो आ चुके हैं। डिवाइड बाई टोटल 100 से 40। सिमिलरली आई एम डूइंग फॉर बी, एंड आई एम एडिंग बोथ बिकॉज आई नीड कि दोनों सेम में आए, फिर वो भले ही ए हो चाहे भले ही वो बी हो। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? बोथ एंटर अ डिफरेंट सेक्शन, तो ये तो सिंपल है। वन माइनस दिस थिंग, बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शन, ये बोला ना मुझे। प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर सेक्शन, बोथ एंटर सेक्शन, बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन। हाँ, तो ऐसे ही होगा। वन माइनस जो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तभी आएगा 17/33। ठीक है। फिर बी वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी में मुझे बोला है बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शंस, बोथ एंटर डिफरेंट sections. So this thing is equal to 1 minus 17/33, that is equal to 16/33। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में? Three letters are dictated to three persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope। मतलब मुझे बोला गया है मेरे पास 6 एनवेलप है, उस 6 एनवेलप में मुझे 6 लेटर डालने हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट एक लेटर तो अपने सही एनवेलप में गया हो। तो वापस इसको मैं कैसे करूंगा? इसको मैं वैसे करूंगा जैसे कि मान लो 3 पर्सन से और 3 एनवेलप, अच्छा 6 नहीं है 3 ही है, मैं 6 से पढ़ रहा था। तो मान लो मेरे एनवेलप्स हैं ए बी सी, ए बी सी मेरे एनवेलप्स हैं, और स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी मेरे लेटर्स हैं। तो मेरे को बताना है कि एटलीस्ट वन लेटर इन प्रॉपर एनवेलप। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? इसको तो मैं बना सकता हूँ ना आराम से। मान लो कैपिटल स्मॉल है सही गया, और कैपिटल बी स्मॉल भी सही गया, कैपिटल सी स्मॉल सी। क्यों मेरे को बोला एटलीस्ट? तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, भले सारे हो जाए। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है, एक हो सकता है ये वाला, जिसमें एक सही गया हो लेकिन बाकी दोनों सही नहीं गए हो। सिमिलर थिंग मैं कर सकता हूँ, सिमिलर थिंग मैं कर सकता हूँ कि मेरा बी सही गया हो, ए और सी सही नहीं गया हो, और फिर सी सही गया हो, बी और ए सही नहीं गया हो। ऐसे करके मैं केस बना सकता हूँ। ठीक है। और कुछ कर सकता हूँ मैं? हाँ, बस ये 4 केस ही हो सकते हैं जिसमें ये तीनों सही में गए हो, एक सही में गया हो, ये वाला सही में गया हो, ये वाला सही में गया हो। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केस 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केस। टोटल केस कितने होंगे? 4 तो ये वाले हो गए, बाकी कौन से बचे? एक वाला आएगा इसमें तीनों डिफरेंट में जाए, मतलब तीनों डिफरेंट वाले कैसे होंगे? वो जाएगा ए बी, बी सी, सी ए, या फिर ए बी, बी, ए बी बी ए तो नहीं हो सकता। और भी हो सकता है क्या? ए सी, हाँ ए सी, बी ए, सी बी। एक ये क्या हो सकता है? ऐसे दो केस होंगे जिसमें मेरे तीनों लेटर डिफरेंट में जा रहे होंगे। तो फेवरेबल हो गए 4 डिवाइड बाई टोटल हो गए 6। तो मेरा आंसर कितना हो गया? मेरा आंसर हो गया 2/3।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें, तो अपन लोग को क्योंकि 3 लेक्चर दिए हुए थे तो अपन लोग आराम से बना बना के चेक कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या बोला है, ए एंड बी। अच्छा, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला मैंने सॉल्व करा क्योंकि ये वाला मैंने कल बहुत बार किया है। पी ए दिया हुआ है, पीपी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ से अपन लोग पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। ये भी निकाल लेंगे 1 - पी ए यूनियन बी से डी मॉर्गन लगा के। फिर पी ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये वही बात हो गई। पी ऑफ ए माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब जो ए में है लेकिन पी ऑफ ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो थर्ड वाला पार्ट कैसे होगा, इट वुड बी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फोर्थ वाला पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब समझ रहे हो ना, थर्ड और फोर्थ में क्या बोला है, थर्ड और फोर्थ में बोल रहे हैं कि एक में हो लेकिन दूसरे में ना हो, तो एक में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन, तो अपने को मिल जाएगा। तो 7 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो मैं कर चुका हूँ, तो मैं नहीं कर रहा। अब एथ वाला करते हैं। एथ वाले में क्या बोला है, एथ वाले में बोला है फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, um, from the employees of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of a company. Okay. Particulars of 5 persons are as follows. A person is selected at random from this group to act as a spokesperson. What is the probability that the spokesperson will be either male of over 30 male और over 35 years? मतलब मेरे को दो चीज दी हुई है, क्या तो वो 35 years से ज्यादा हो या फिर वो मेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे ये बताना है। तो सिंपल है ये भी। कैसे करेंगे इसको, देखो इसको कैसे करेंगे। टोटल पर्सन तो 5 है, तो स्पोक्स पर्सन चुनने के लिए टोटल केस कितने हो जाएंगे, 5। तो अपना एनएस हो गया 5। फिर मुझे बोला है कि ए हो, क्या तो वो मेल हो, क्या तो 35 ईयर्स से अबव हो। पहले निकालता हूँ मैं एन मेल का, मतलब पी मेल का, मतलब अगर वो मेल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी कि 3 मेल है ना, तो उसको हो जाएगी 3/5। ठीक है, फिर अगर वो 35 ईयर्स से अबव है तो पी 35 निकालता हूँ अब मैं, उसकी क्या हो जाएगी, 46 और 41 दो है, 2/5। ठीक है, अब मुझको निकाल, पी 35 पे है, सॉरी। ठीक है, अब मुझे बोला है कि मुझको और बताना है, तो मुझे इसका एंड भी निकालना पड़ेगा। और इस केस में एंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि एक मेल है जो 41 टू 35 से ज्यादा है, तो इस केस में एंड भी है दोनों का। तो एम एंड 35, मतलब जो मेल भी है और 35 से बड़ा भी है, वैसा भी कोई केस है क्या, वैसा एक केस है ये वाला, उसका क्या हो जाएगा 1/6। तो बस अब अपना आंसर आ गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पी एम और 35, दैट इज इक्वल टू पी एम विच इज 3/5 प्लस P35 विच इज 2/5 माइनस 1/6, -1/5, सॉरी ये 6 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब मेरे पास फाइनल आंसर आ जाए, कितना आ जाएगा, 4/5 इसमें फाइनल आंसर। समझ में आया ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एंड वाला कॉम्पोनेंट भी अपने कंसिडर करना था, जो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। सो बाकी क्वेश्चन इजी था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहे हैं इसमें, if a four-digit number greater than 50,000, 5,000 are randomly formed from digits this, what is the probability of finding a forming a number divisible by 5? ओके। पहली बात तो 5,000 से बड़ा है, तो पहला नंबर क्या, तो 5 हो सकता है। बाकी 3 नंबर चुन लो अपने मन से। ठीक है, या फिर पहला नंबर 7 हो सकता है। बाकी 3 नंबर अगेन चुन लो अपने मन से। ठीक है, फिर मुझे बोला है कि पहले वाले केस में दे देता रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड एंड इट इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 तो दो ही केस में हो सकता है, अब क्या तो आखिरी में 5 आए या फिर आखिरी में 0 आए।
है ना? दो ही केस पॉसिबल है। तो पहले तो यहाँ पे टोटल केस कितने होंगे? टोटल केस होंगे कि पहले पहले पे 5 हो, बाकी तीनों पे कुछ भी हो जाए। ये हो जाएगा ना? ये नंबर के अपनी सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस सारे नंबर है जो 50,000 से, जो 5,000 से बड़े हैं। और जो अपने को चाहिए वो वाले नंबर है जो 5 से डिविजिबल भी है और 5,000 से बड़े हैं। तो सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी? सारे नंबर जो 5,000 से बड़े हैं। तो इस जगह को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? इस जगह को मैं भर सकता हूँ एक दो तीन चार पांच तरीके से। इसको भी पांच तरीके से, इसको भी पांच तरीके से। तो यहाँ से कितने आएगा टोटल? 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो ये हो गया 125 बेस, तो यहाँ से हो गए। सिमिलर वे में यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो 125 बेस यहाँ से हो गए। तो एन एच कितना हो गया? एन एच कितना हो गया? एन एच हो गया 125 प्लस 125, मतलब 250। ठीक है। ये तो हो गया अपने टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि यहाँ पे मैं चुन सकता हूँ पांच तरीके से, यहाँ पे भी पांच, यहाँ पे भी पांच, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। उसके बाद अब अपने को चाहिए कि जो अपने को फेवरेबल केस है वो निकालना है। फेवरेबल केस दो ही हो सकते हैं, क्या तो यहाँ पे 5 हो, क्या तो यहाँ पे 0। सेम इधर भी। तो उस केस में क्या होगा? फेवरेबल में 5 वाले केस में हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू लास्ट प्लेस पे से 5 और 0 ही आ सकता है, तो सिर्फ दो। तो हो जाएगा 25 इंटू 2 50। सेम सेम फॉर 7, सेम फॉर 7। तो फिर उसके लिए भी 50 और हो जाएंगे। तो 50 और 50 100। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 100 डिवाइड बाय 250। सिंपल। बट एक मिनट, लेकिन इसमें एक केस ऐसा भी होगा जिसमें अपन लोग 5,000 ले लेंगे। अपने को चाहिए नंबर्स ग्रेटर देन 5,000, तो मेरे को वो वाला एक हटाना पड़ेगा। तो एन एस एक्चुअली 250 249 है। ठीक है। तो फिर अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 50। हम एक्चुअली हो जाएंगे 100। ये एक्चुअली 100 भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी एक केस ऐसा आ जाएगा जिसमें मैं 5,000 ले लूंगा, क्योंकि आरती में अपन 0 ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी दोनों में 0 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो वाला हटाना पड़ेगा मुझे, तो इसमें भी 100 - 1 करके 99 करना पड़ेगा इसको। तो मेरी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हो जाएगी 99 डिवाइड बाय 249। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो क्या हो जाएगा? बस ये 5 इंटू 5 इंटू 5 की जगह हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। यहाँ पे भी हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। माइनस में अपने को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5,000 आ नहीं सकता, क्योंकि रेपिटेशन तो है ही नहीं, तो 0 0 रिपीट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। मतलब कितने हो जाएंगे? एनएस क्या हो जाएगा? एनएस हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 60, तो 60 + 60। एनएस हो जाएगा 120। और एन ए मतलब जो अपने को चाहिए, सॉरी, एन ए कितना हो जाएगा? एन ए हो जाएगा जो अपने को चाहिए, मतलब जो फेवरेबल है। तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे? फेवरेबल हो जाएंगे जिसमें अपने को वो डिविजिबल बाय 5 हो जाए, वो आ जाएंगे फेवरेबल केसेस। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं? और ये एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पे 5 और 7 भी आ चुका है ना, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 भी नहीं होगा। ये 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, क्योंकि 5 तो आ ही चुका है ना। तो मैं पांच में से नहीं चुन सकता, मैं चार ही में से चुन सकता हूँ। तो एक्चुअली में 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा। तो 24 + 24 48 आएगा यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे चाहिए कि मेरा नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे मैं 5 तो ले नहीं सकता, क्योंकि 5 और 5 सेम हो जाएंगे। तो 5 के साथ मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 0। बीच में बचे दो नंबर। उन दो नंबर को मैं चुन सकता हूँ कितने तरीकों से? दो नंबर गए, 5 और 0 गए। पांच में से सिर्फ तीन नंबर बचे। तो मैं बीच वाले दो नंबर को चुन सकता हूँ 3 इंटू 2 6 तरीकों से। तो एन हो जाएगा 6
प्लस 7 के लिए मैं यहाँ पे चुन सकता हूँ क्या, तो 5 या फिर 0। 5 लूंगा तो भी यहाँ पे 3 into 2, 0 लूंगा तो भी यहाँ पे 3 into 2, 6 + 6 12। उसमें 12 और ऐड हो गए, तो टोटल हो गए 18 केसेस। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी नथिंग बट 18/48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8, 6 से डिवाइड कर लो। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट अपने को थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, कहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है कहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी करी, जहाँ पे सब बच्चे फंसते हैं, इस दैट केस जिसमें अपन लोगों ने 5000 को डिलीट नहीं किया था। अपने को 5000 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बोला है कि अपने को नंबर्स वाले लेने हैं जो 5000 से बड़े हैं। तो 5000 को हटाना पड़ेगा, और फिर नंबर अपने लोग चुन रहे हैं 5 into 4 into 3 तरीकों से, 4 into 3 into 2 तरीकों से, क्योंकि अपने को रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो हम लोग पहला नंबर चुन सकते हैं 4 तरीके से, दूसरा 3 तरीके से, और चौथा 2 तरीकों से, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस तरीके से 9th वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बोला है द नंबर लॉग ऑफ सूटकेस has four wheels. ओके, ईच लेबल विद 10 डिजिट 0 to 9, ऐसे ही होता है। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। ओके, what's the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? ओके, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस वापस हो जाएंगे NS 10 में, टोटल 10 डेट्स है, 10 में से अपने को 4 चुननी है। ठीक है, तो 10C4 ये तो हो जाएंगे अपने टोटल केसेस। बट इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर पे अलग अलग परमुटेशन बनेंगी। तो एक्चुअली में मुझको इसमें 10C4 की जगह 10P4 करना पड़ेगा। अब P क्या होता है, P होती है परमुटेशन, मतलब P के केस में क्या होता है ना, P के केस में अपन लोग ऑर्डर को भी काउंट करते हैं कि कितने ऑर्डर बन रहे हैं, मतलब 1 2 और 2 1 अलग अलग है। मतलब इस केस में अपने को ऑर्डर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपन लोग किसी सूटकेस पर लॉक लगाते हैं, तो अपन लोग 1 2 3 4 भी लगा सकते हैं, 4 3 2 1 भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्डर बदल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो अपने को इस केस में ऑर्डर भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में हो जाएगा 10P4, और 10P4 क्या होता है, ये होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 4 6 फैक्टोरियल। इस केस में वो 4 फैक्टोरियल वाला टर्म चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा NS। अपने को चाहिए करेक्ट सीक्वेंस, तो अपना एक ही होगा, तो अपना जो N है वो तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि सूटकेस को लॉक खोलना है अपने को, तो सही लॉक, सही कॉम्बिनेशन तो एक ही होगा ना। N हो जाएगा 1, तो अपने पास P कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10P4, वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर चले जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करूंगा मतलब, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, बाकी 6 फैक्टोरियल तक कर जाएंगे सारे। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 1/5040। तो ये मेरा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद ओके, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, as such probability chapter is not at all difficult. This is one of the most easiest chapters out there in mathematics. तो अगर अपन इस पर अच्छी होल्ड बना लेते हैं, तो अपने को एग्जाम में आसानी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स एक्चुअली थोड़ी टफ होती है, बट प्रोबेबिलिटी इज इजी, इजी पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। बाकी अपने को सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसके, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस वगैरह क्या होता है, और ये जो मैंने बताया आपको डी मॉर्गन्स और NF NB PA इंटरसेक्शन BPA यूनियन भी क्या होता है। तो अगर अपने को इतना पता है, तो वी कैन इजिली डू दिस। तो यहाँ पे अभी ये चैप्टर एंड होता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।